ओके। सो ऑडियो क्लियर है। यस। जी सर, क्लियर है। ओके ग्रेट। सो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट वी डिड अबाउट आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6 and now we are going to discuss about some server level protocols. Okay, so there are many protocols which we can implement, which we can use in networking. Okay, let me note down some protocols like yes, we are going to discuss about protocols and functions of protocols. Okay, so multiple types of protocols are there, which are http, http, https. Okay, and another different types of protocols like ftp, sftp, and telnet, ssh, and tcp, udp, smtp, and like dns, dscp, telnet। ठीक है। और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स और इसकी सर्विसेज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल्स आ जाएगा, बट एज पर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वो बेटर है। आईपी को ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं। ओके, तो बेसिकली व्हाट इज एच टी टी पी। ओके, सो एच टी टी पी स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर protocol. Okay, basically it is used for web browsing. Okay, whenever we are accessing any data from the website like from www.google.com. Okay, so with the help of http and https we can access data. So these are the application layer protocols. Okay, let me show some example. यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। Like for example, this is my browser Firefox, and I'm going to access a website based on HTTP. So this is HTTP based website. HTTP means like it is insecure or unsecure website. Okay, means there is no security. Whenever user input any data with the help of HTTP, okay, for any website, so data transfer as a plain text information. Okay, data क्या होता है? Transfer as a plain text information. Means whenever user input any data on this particular website, it is more possible to hack or to like capture the exact input given by user with the help of http website or http protocol. Okay, means there is no encryption, and due to no encryption data will transfer in plain text. Okay, सो प्लेन टेक्स्ट मीन्स 1 2 3 एज इट इज 1 2 3 की तरह तरह क्या होगा, ट्रांसफर होगा। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द एच टी टी पी इनसिक्योरिटी और अनसिक्योरिटी, राइट। तो ये मेन रीजन है। द पोर्ट नंबर इज 80।
You can access, you can monitor your communication, you can monitor your data capture data with the help of any capturing tool like Wireshark. You can install Wireshark on your computer. It is free, and you can see with the help of this tool we can monitor the packets. Okay, okay, great. Now you can see there is multiple communication based on port number 80. You can see port number 80, this one 80. Okay, so I can access more detail. लेट मी शो। मेरे पास दो टैब ओपन हो गया था, तो मैं यहाँ से अगर दोबारा इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ तो अगेन आप यहाँ पर देखोगे देर इज पोर्ट नंबर 80। ओके, पोर्ट नंबर 80 एंड द प्रोटोकॉल इज HTTP। ओके, and every types of communication through HTTP will be in plain text. Okay, so hacker attacker easily monitor or capture the input given by user. For example, I'm going to assign the input for username, which is admin, and the password is 123456789 0. You can assign any password. Okay, it is just for example. Now I'm going to click on login button, and yes, at that time you can capture your packet with the help of HTTP application protocol. Okay, and you can see these are the HTTP application protocols. Okay, so for example, I'm going to test what is the input given by, or what are the inputs given by user. Okay, so you can just follow the TCP stream and see there are different types of inputs. Okay, let me check out the exact input value. For example, मैं HTTP से एग्जैक्टली अगर उसको टेस्ट करता हूँ, जो कि हमारा एक इनपुट वैल्यू था, एंड या दिस वन, एंड यस अगर मैं यहाँ से TCP स्ट्रीम or HTTP stream, these are the HTTP stream. Okay, so you can check what are the inputs given by user and what is the JSON ID. You will get HTTP and the complete URL. Okay, the HTTP testfire.net/login.jsp. Okay, so this is the basic fundamental or working fundamental of HTTP. Okay, and yes, there is HTTP 1.1 200, means it is I think it is about data packet. Okay, and the server is Apache, and the type is text and HTML, and there are another details like date and time, and other details you can check through the capturing data. And I think yes, these all details about HTTP packet. Okay, same thing you can identify with the same filter, and you can check TCP stream. Basically, TCP stream or TCP is a protocol to carry the information or to transport the information. So what are the information, or what are the informations transported by the user? You can check through TCP. Okay, so you can see these are the information. Basically, you can check some uh, yeah, more detail about specific HTTP और HTTPS, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगा। आई थिंक सिमिलर इंफॉर्मेशन इधर में देखने को मिल पा रहा है। ओके, कौन सा ब्राउज़र इस्तेमाल हुआ है, कौन सा लाइक इस्तेमाल हुआ है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड यस, दिस इज JSON ID, and with the help of JSON ID, hacker attacker can get access of your credential. Okay, without applying any username and password. So this is the vulnerable process with the help of HTTP. Okay, HTTP हमारा क्या होता है, एक vulnerable process होता है। मैं बहुत आसानी से इसके अंदर इनपुट हो सकता हूँ और इस JSON ID का इस्तेमाल करके।
बेसिकली यहाँ पर जो हमारा रिक्वेस्ट है वो इनपुट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने एक रॉन्ग क्रेडेंशियल अप्लाई किया था जस्ट डेमो पर्पस के लिए। बट वेन एवर वी हैव राइट क्रेडेंशियल्स, सो सेम क्रेडेंशियल्स वी कैन लॉग इन थ्रू दिस सेशन, जे सेशन आईडी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम कैप्चर कर सकते हैं। बेसिकली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दी एस टी टी पी एंड एस टी टी पी एस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, और दोनों में हमारा जो सिक्योरिटी लेवल है वो क्या है। तो दोनों में जो हमारा सिक्योरिटी लेवल होता है वो एस टी टी पी एस का बेटर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है। ओके, मीन्स जो भी हमारा इंफॉर्मेशन जाएगा, जितना इजी तरीके से आप यहाँ पर रीड कर पा रहे हो, टीसीपी स्ट्रीम हो या कोई भी इंफॉर्मेशन, उतना आसानी से आप उसके अंदर रीड नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ पर देखो, बहुत सारे इनपुट्स के बारे में भी, इनपुट्स में भी आपको दिखा देगा कि यूज़र नेम क्या यूज़र ने ट्राई किया था, पासवर्ड क्या ट्राई किया था। ये देखो, बहुत सारा लाइक अपडेट यहाँ पर है, और इनका वैल्यूज़ भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हमें थोड़ा सा यहाँ पर रिसर्च करना पड़ेगा, यूज़र नेम के जगह पर क्या इस्तेमाल किया गया था, इन पासवर्ड की जगह पर क्या इस्तेमाल किया गया था। यू कैन फाइंड दी ऑल डिटेल्स। ओके, सो वेन एवर यू हैव एनी लाइक एक्सेस विथ HTTP, सो मेक श्योर कि वो एक ट्रस्टेड वेबसाइट हो, अदरवाइज यू विल लूज योर क्रेडेंशियल्स। ओके, तो ये चीज़ हमेशा आप ध्यान देंगे। एंड फॉर लोकल इन्वायरमेंट एज अ सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर यू कैन सेट अप HTTP लेवल like HTTP application protocol for web access. Okay, but whenever you have any public access, or whenever you have any like opportunity to deploy the public level domain, so it is make sure कि वो आपका एक HTTPS level का encryption हो. So how you can secure your website instead of port number 80, how you can implement port number 443, and 443 is based on HTTPS, means hypertext transfer protocol security. S means secure. So secure means there is two protocols or two layer security, which is SSL or TLS. Okay, so these are the protocols are like encryption technology or encryption algorithm which encrypt our data while transferring any like information through HTTPS. Okay, so SSL and TLS. SSL is an older protocol and TLS is like modern or newer protocol to encrypt the data, but both are more secure. But TLS is better than SSL because every upgrade like comes with great security और फीचर्स। ओके, बहुत अपग्रेड का मतलब ही क्या होता है कि एक बहुत अलग कुछ लेकर आना, बहुत यूनिक अपडेट करना, नए फीचर्स अप्लाई करना, नए नए अपडेट्स उसके अंदर डालना, ये सब पॉसिबल है थ्रू HTTPS. Okay, same thing, there is FTP and SFTP. Okay, सेम प्रोसेस जो कि यहाँ पर FTP और SFTP के थ्रू इस्तेमाल किया जाता है। सो कोई बताएगा FTP किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, या कोई अदर फाइल डिटेल? ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, यूजुअली वेबसाइट्स पे जब आप डेटा अपलोड करते हो, यू यूज इट टू फाइल ज़िला एंड स्टफ, एफटीपी। यस, सो बेसिकली यूज्ड फॉर upload and download information. To upload or download the information. Okay, you can see. So file transfer protocol, okay, and SFTP, same thing you can answer as per SFTP also. Okay, कि अगर हमारा FTP का जो आंसर है वही सेम आपका SFTP का आंसर हो सकता है। सिंपल SFTP हमारा क्या होता है, एक सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इट इज़ अ सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, सिमिलर लाइक HTTP एंड HTTPS। ओके, हमारा क्या है, HTTP एंड HTTPS। तो FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फॉर एग्जांपल अगर हमारे कंपनी के अंदर कोई ऐसा सर्वर चाहिए जहां से, मान लिया कि हमारे कंपनी के अंदर 5000 यूज़र हैं, एंड दे वांट टू एक्सेस some applications on daily basis. Okay, they want to download some data on daily basis, or maybe a data size is 1 या 500 MB, बेसिकली बहुत एक छोटा सा डेटा लाइक 500 MB का है, और 500 MB 200 एम्प्लॉय या 500 एम्प्लॉय मान लिया हमारी कंपनी में जो हैं, 500 एम्प्लॉय अगर 500 MB का डेटा डाउनलोड करते हैं तो टोटल डेटा
कितना होगा, आप काउंट कर सकते हो कितना जीबी हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, देर इज ह्यूज ट्रैफिक ऑन डेली बेसिस इन आवर नेटवर्क, ओके, in our gateway. So how you can fix those issues are these problems. For example, the data is same for every day, so you can deploy, you can download that particular data and deploy with the help of FTP on a specific local server, and user can download the same data on daily basis without investing any, like or without using WAN internet connection, okay, or without losing data size, या सॉरी डेटा क्या बोलते हैं उसको, लाइक जो भी हमारा लिमिट ऑफ डेटा का क्राइटेरिया होता है, वो बिना रिस्ट्रिक्शंस के उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। 200 जीबी अगर डेटा डेली बेसिस पर इस्तेमाल होता है अनवांटेड, तो हम उसको जीरो कर सकते हैं, ओके। एंड 200 का मतलब होता है कि देर इज अप्रोक्स 3 3 into 2 is equal to 600, एम आई राइट? नो 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 नो, 6000, right, GB data you can save every month, okay. So you can deploy a local server based on FTP or SFTP, and you can upload, or user can upload or download the data with the help of FTP. So FTP provide like insecure level communication or unsecure, right? यहाँ पर क्या होता है कि एक तरीके का not secure, because there is no encryption, and the port number is 20 by 21, okay, 21 to control the connection and 22 ट्रांसफर दी डेटा। तो एफटीपी और एसएफटीपी में भी वही डिफरेंस है कि हमारा एक सिक्योर है, जो कि एसएफटीपी सिक्योर फाइल करता है, ट्रांसफर करता है, और हमारा जो एफटीपी है, एसएफटीपी है, सॉरी एफटीपी है, ये इनसिक्योर होता है, नॉट सिक्योर होता है, प्लेन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर मेरे सिस्टम पर कोई भी अगर कोई एफटीपी सर्वर या कुछ चल रहा है, वी विल लर्न हाउ टू सेट अप एफटीपी सर्वर ऑन विंडोज सर्वर 2025 और एनी अदर वर्जन। But right now I have Kali, or I have Linux server, and let me check, is there any FTP application as stats, okay, and uh, I think it is about yes, vsftpd dot services. Okay, this service is not found. Means there is no like vsftpd type of service, okay. तो यहाँ पर क्या है कि अभी हमारे उस पर नहीं है, अदरवाइज मैं इसको एक्सेस करके दिखाता कि कैसे ये वर्क करता है। मैं यहाँ पर सेटअप कर सकता हूँ सिंपल अपडेट लेकर, बट वी विल लर्न हाउ टू सेटअप दीज थिंग्स ऑन विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। तो दोनों का ये कंपैरिजन हम यहाँ पर वो कर सकते हैं कि एक तरीके का सिक्योर है, और सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पर होता है कि हम एक तरीके का एसएसएल लेवल की सिक्योरिटी डिप्लॉय कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। और पोर्ट नंबर 22 हमारा हो जाता है जब भी हम सिक्योर कम्युनिकेशन करते हैं। ऐसे ही हमारा टेलनेट भी है, लाइक रिमोट टर्मिनल प्रोटोकॉल है, ओके। सो यूजर कैन एक्सेस एनी रिमोट डिवाइस यूजिंग networking, okay, but telnet is not secure, okay, just because of sending information in plain text, okay, this is the simple reason। टेलनेट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट टेलनेट के थ्रू अगर हमारा कोई भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो वो एक तरीके का क्या है कि सिक्योर नहीं है। ये भी हमारा सिमिलर वर्क करता है एचटीटीपी एफटीपी की तरह। तो हमेशा हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, एसएसएच, जो कि ऊपर आपने देखा कि 22 पोर्ट नंबर होता है, टेलनेट का पोर्ट नंबर 23 होता है। तो एसएसएच का पोर्ट नंबर हमारा क्या होता है, 22 होता है, और एक तरीके का सिक्योर है, और इनक्रिप्शन सपोर्ट करता है, प्रोवाइड इनक्रिप्शन, नॉट ओनली इनक्रिप्शन, स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शन, ओके, और वेरी सिक्योर कम्युनिकेशन, और वेरी सिक्योर कम्युनिकेशन। कुछ लोग डिस्कनेक्ट और कनेक्ट हो रहे हैं, क्या रीज़न है? सारी चीज़ें आ रही हैं क्या? सर कौन कौन डिस्कनेक्ट कनेक्ट हो रहा है? यस सर, सारी चीजें आ रही हैं।
ओके। क्या हुआ गौतम, आप बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट, नेटवर्क इशू है क्या? अमर इसमें नहीं है। अनुराग हैं, अशोक, अशोक हैं। ये भारत कंप्यूटर करके कोई बिजनेस करता है क्या? इन्होंने इनरोल किया भारत कंप्यूटर करके, यस कौन सर, है? यस सर। नाजिर। नाजिर। नाजीर अली, ओके, यस। आपका अपडेट कर दें। इस नाम से सेव कर रखा होगा सर या मैम ने। गौतम आपका हो गया। महेंद्र, महेंद्र भी एब्सेंट हैं। मुस्तफ़ा, रमेश अवेलेबल हैं। संकेत भी एब्सेंट हैं। एसएनसी, तीन चार, अभी तो लोग थे। तो मिस मत करो कोई भी सेशन। मैं बेस अगर आ, तैयार करा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि इजी टॉपिक समझ के हम इसको इग्नोर करें, क्योंकि आगे जब स्ट्रॉन्ग जैसे ही एडवांस स्टार्ट होगा तो इसका फिर मुश्किल होगा समझना। और कम बैक भी नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पर फिर समझाना स्टार्ट करूँ। कोई भी मिस मत करना एक भी सेशन। ठीक है, तो एसएसएच हो गया। हम लोग सर्वर पर बहुत आसानी से एफटीपी का भी सेटअप कर सकते हैं और एसएसएच का भी, और इसका ब्रूट फोर्स भी मैं दिखाऊंगा लाइव अटैक करके। ओके। देन टीसीपी एंड यूडीपी। बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर टीसीपी की बात करें, सो इट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके। एंड सिक्योर। ये क्या है? सिक्योर है, रिलायबल है, एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है। लाइक व्हाट्सएप पर जब आप किसी को मैसेज करते हो, एक ग्रीन चेक बन जाता है अगर वो बंदा मैसेज रिसीव कर लेता है, तो इसका मतलब आप क्या समझते हो? एक्नॉलेज्ड। बट वही अगर ईमेल पर किसी को आप डेटा सेंड करते हो, तो जब तक ईमेल ट्रैकिंग आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, पाइथन प्रोग्राम ये सब नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, तब तक आप एक्नॉलेज नहीं कर पाओगे कि यूज़र ने मेल को ओपन किया, है ना? अगर फ़ोन पर आप किसी को टेक्स्ट मैसेज कर दो और वही व्हाट्सअप मैसेज करो, तो दोनों में एक्नॉलेज कौन प्रोवाइड कर रहा है? जो व्हाट्सअप मैसेज है। टेक्स्ट मैसेज में यूज़र ने पढ़ा नहीं पढ़ा हमें नहीं आइडिया होता। ओके। तो बेसिकली क्या होता है कि एक्नॉलेज का मतलब होता है कि कंफर्मेशन। ओके। रिलायबल है, सिक्योर है, एंड स्लो डेटा, स्लो ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है। ओके। इन कंपेयर ऑफ यूडीपी, ये क्या होता है? एक स्लो ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है। ओके। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये एक बेटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रोटोकॉल है। लेकिन मेक श्योर कि हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हमें करेंटली कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना है। हम जिससे चाहें उससे डेटा ट्रांसफ़र करें। जैसा हम इंटरनेट पर एक्टिविटी करते हैं उस हिसाब से ये सारी प्रोटोकॉल्स फंक्शन करते हैं। इनका सेटअप होता है। ओके। यूडीपी मीन्स यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। एंड ये क्या होता है? नॉट सिक्योर। अब नॉट सिक्योर क्यों होता है? क्योंकि ये फास्टर डेटा डिलीवरी के लिए होता है। ओके। फास्टर डेटा ट्रांसफर करने के लिए होता है। एंड नो एक्नॉलेजमेंट, इसमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता। एंड बोल सकते हैं कि एक तरीके का ये लार्ज डेटा मॉडल पर है। मीन्स लार्ज डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑडियो स्ट्रीमिंग टाइप के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, एंड वहाँ पर हैवी डेटा ट्रांसमिशन चाहिए होता है, तो वहाँ पर ऐसे प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओके। करेंटली अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर हमारे सिस्टम पर, तो मैं एक ऑडियो वीडियो स्ट्रीम कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो स्ट्रीमिंग मैं कर रहा हूँ, मतलब अगर हम लोग देखें तो मैं यहाँ पर सिर्फ डेटा तो वेबसाइट पर एक्सेस नहीं कर रहा हूँ जिसमें टीसीपी काम करेगा। अभी आपने बैकएंड में देखा था, मैंने जो एचटीटीपी का कॉन्सेप्ट दिखाया था, तो वहाँ पर हमारा क्या है? एक तरीके का नॉर्मल एक्सेस दिखा रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर यूडीपी इस्तेमाल करता हूँ, तो एक हैवी डेटा ट्रांसमिशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि ऑडियो स्ट्रीमिंग मैं करंटली कर रहा हूँ और मैं अपने मेन सर्वर को, मेन मशीन को यहाँ पर एक्सेस करता हूँ, और वायर सार के थ्रू मैं मॉनिटर करता हूँ। सी,
तो करंटली हमारे पास क्या है, एक तरीके का यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो बेसिकली यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल हमारा क्या होता है, फास्टर डेटा ट्रांसमिशन और सारी चीज़ों के लिए होता है। एसएमटीपी हमारा जो होता है मेल ट्रांसफर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ऑलरेडी आप लोग जानते हो। सो मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ओके। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल ट्रांसफर, ओके। तो जो भी हमारा मेल ट्रांसफर होता है, मेल को ट्रांसफर किया जाता है, सो सेंडिंग मेल, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग मेल्स। एंड पोर्ट नंबर क्या होता है, 25 होता है, ओके। तो सेंडिंग मेल्स का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी मेल को सेंड करते हैं और ये सारी चीज़ें, सो देर इज़ अ प्रोटोकॉल विच इज़ एस एम टी पी, ओके। So you can check SMTP, or there is another protocol POP or IMAP, okay, for receiving the mails, okay। मेल को रिसीव करने के लिए हमारा POP और IMAP इस्तेमाल जाता है, और पोर्ट नंबर 110 है, ओके। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा जो POP और SMTP है, ये दोनों का सेटिंग्स जो भी हमारा मेल सर्वर होता है वहाँ पर होता है, ओके। फॉर एग्जांपल यू कैन ओपन योर जीमेल अकाउंट एंड यू कैन चेक योर अकाउंट सेटिंग, एंड you can check there is POP and SMTP level setting in your account, okay, in backend. And on behalf of that setting you can send and receive the emails। अगर आप वहाँ से इन सर्विसेज को, इन प्रोटोकॉल्स को स्टॉप कर दो, डिसेबल कर दो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेंड एंड रिसीव द ईमेल्स, ओके। तो हमारा क्या होता है कि जो पीओपी और ये सारी चीज़ें हैं, या आई मैप और ये सारी चीज़ें हैं, ये एक बेटर मेल डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट इनके बहुत सारे वर्जन हैं, आई मैप के भी अपडेटेड वर्जन है, पीओपी के भी POP 3 हैं, और ये सारी चीज़ें हैं, बट दैट इज़ अनदर पार्ट, ओके। तो हमारे पास कुछ और है, जैसे डीएनएस हमारा डोमेन नेम सिस्टम होता है, डोमेन डी डोमेन नेम सिस्टम, हाँ, पोर्ट नंबर 53 होता है। एंड इसका मेन पर्पस होता है नेम टू आईपी एंड आईपी टू नेम, ओके। नेम मीन्स डोमेन नेम, ओके। डोमेन नेम से आईपी में और आईपी से डोमेन नेम में ट्रांसफर करने का काम करता है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। एंड एक चीज़ और हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो आईपी से डोमेन नेम में ट्रांसफ़र हो रहा है, और नेम से डोमेन नेम से आईपी में, ये एक पर्टिकुलर ह्यूमन के लिए एक काफ़ी यूनिक चीज़ है, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लर्न दी आईपी एड्रेसेस फॉर ऑल डोमेन, कि हम सभी वेबसाइट्स का आईपी नहीं याद कर सकते, जैसे google.com, facebook.com, youtube.com, सीखो लाइव.com, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं। तो सबका नेम हम आसानी से याद कर सकते हैं, इट इज़ जस्ट लाइक योर फोन बुक, ओके। तो फोन बुक का एग्जांपल क्या है, कि आपको अगर किसी को कॉल करनी है तो उसका नेम सर्च करते हो, नंबर नहीं सर्च करते, क्योंकि नंबर याद नहीं होता, है ना। तो ये हमारा डीएनएस सिस्टम, डीएनएस सर्वर क्या करता है, पहले तो ये काम होता है उसका नेम को आईपी और आईपी को नेम के साथ मैनेज करना। बाकी विदाउट डीएनएस किसी सर्वर को एक्सेस कर पाना नॉट पॉसिबल, ओके। इसका पूरा रोल मॉडल हम लोग पढ़ेंगे, कैसे काम करता है। और डीएचसीपी हमारा होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और ये पोर्ट नंबर 67/68, ओके। एंड इसका पर्पस क्या होता है, ऑटोमेटिक, आईपी पर्पस क्या असाइनमेंट्स। होता है, और ऑटोमेटिक और डायनेमिक आईपी एड्रेसिंग, ओके, ओवर अ नेटवर्क और ऑन अ नेटवर्क, आर इन अ नेटवर्क। तो कहीं पर भी जो हमारे नेटवर्क्स होते हैं उनमें
अगर मल्टीपल सब कंप्यूटर हैं तो उनको ऑटोमेटिक आईपी असाइन करने का काम करता है। डीएससीपी में हम लोग डोरा प्रोसेस भी समझेंगे, डीएससीपी फंक्शन कैसे करता है, पोर्ट मॉनिटरिंग भी करेंगे, डीएससीपी के स्कोप को समझेंगे, एक्सक्लूजन को समझेंगे, रिजर्वेशन को समझेंगे, सुपर स्कोप को समझेंगे। ओके, डीएससीपी फेल ओवर समझेंगे, स्टैंड बाय समझेंगे, बैकअप एंड रीस्टोर समझेंगे। बहुत सारी लैब्स इसके अंदर आती हैं। बट जब हमारा मॉड्यूल स्टार्ट होता है सर्वर रोल के साथ, तब हम इसको कॉन्फ़िगर और मैनेज करना देखेंगे। ओके, तो ऐसे मल्टीपल्स प्रोटोकॉल्स हमारे लाइक सर्वर लेवल पर होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है डेटा सेंडिंग रिसीविंग के लिए। ओके, एंड इसी सब चीज़ों के साथ दो और फंक्शन हम लोग यहाँ पर समझ लें, जो कि हमारा एक है टीसीपी आईपी एंड एक है ओएसआई मॉडल। ओके, ये दो मॉडल हमें देखने को मिलता है, या दो मॉडल हमें आ, पढ़ने को मिलता है। और इन दोनों मॉडल का एक ही पर्पस होता है, लाइक डेटा ट्रांसमिशन और डेटा फ्लो को समझना। ओके, सो द बोथ विल हेल्प टू understand the data flow system, data flow, okay, in a in network। नेटवर्क में जो भी हमारा डेटा फ्लो है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू ओएसआई एंड टीसीपी आईपी मॉडल। राइट, क्लियर है? तो इन दोनों मॉडल के बारे में भी आपने सुना होगा। टॉप लेवल के इंडस्ट्री लेवल के क्वेश्चंस इंटरव्यूज में ये सब क्वेरीज करी जाती हैं इन सब टॉपिक को लेकर। जितना भी आज आप पढ़ रहे हो सभी हमारे इंटरव्यू का पार्ट हो सकता है फॉर एडवांस लेवल इंटरव्यू। मैं आपको जब जॉब डिस्क्रिप्शन दिखाऊंगा, है ना, तो उसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। ओके, तो सिंपल हमारा ओ एस आई एंड टी सी पी आई पी का फंक्शन होता है मेल, सॉरी, जो भी हमारा इनकमिंग एंड आउटगोइंग इंफॉर्मेशन होता है, डेटा होता है, सेंडिंग रिसीविंग होता है, वो सब हम इसके थ्रू समझ पाते हैं। ओके, जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको ओ एस आई मॉडल यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, सो देर इज 7 मॉडल। ओके, और 7 लेयर। आप कोई भी इंटरनेट से इंफॉर्मेशन और सारी चीज़ें ले सकते हो। सो देर इज 7 लेयर, एंड अगर हम लोग यहाँ पर इसको ऐड करते हैं, दोनों आपको एक साथ मिल जाएगा। तो एक हमारे पास आता है ओ एस आई एंड एक तरफ हमारा होता है टी सी पी आई पी। ओके, ये दो लेयर या फंक्शन आप इसको समझ सकते हो। दोनों में काफ़ी सिमिलर कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। जैसे कि अगर हम एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल की बात, मतलब यहाँ पर बात करते हैं एज पर ओ एस आई मॉडल, सो देर इज 7 लेयर्स। ओके, यहाँ पर क्या हमारे पास है, 7 लेयर्स होते हैं। एंड टीसीपी आईपी में हमारे पास क्या होते हैं, मे बी 4 और 5 लेयर्स आपको देखने को मिलेगा। अक्सर आपको 4 लेयर मिलेगा, बट यहाँ पर 5 लेयर्स का भी एक कॉन्सेप्ट आता है। बट एज पर 4 लेयर अगर हम लोग देखें तो टीसीपी कंबाइन एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट, सॉरी, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर। ओके, तो टीसीपी क्या करता है, ये एक तरीके का कंबाइन करता है, कंबाइन आर कॉम्बो ऑफ एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर। ओके, बट अगर एज पर वैसाई मॉडल हम लोग देखा जाए या एज पर टीसीपी आईपी मॉडल, तो ये एक तरीके का ये एक तरीके का बोलेंगे इम्प्लीमेंटेड मींस रियल टाइम मॉडल इसको बोला जाता है, क्योंकि एक तरीके का ये यूज्ड मॉडल है। टीसीपी आईपी मॉडल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये एक तरीके का फ्रेमवर्क है
जस्ट थ्योरेटिकल सिनेरियो इसको बोल सकते हैं, रिसर्च बोल सकते हैं। और एक ऑर्गेनाइज्ड रिसर्च ये है, स्टेप बाय स्टेप है। ओके। और दोनों का मेन पर्पस होता है टू लाइक अंडरस्टैंड द सेंडिंग एंड रिसीविंग प्रोसेस ओवर अ नेटवर्क, राइट। सो फॉर एग्जांपल, एक चीज़ और यहाँ पर है, कुछ कोर पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको नोट डाउन कर देता हूँ। जैसे कि अगर एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन एंड ट्रांसपोर्ट, इन 4 लेयर्स की बात करें, सो नोन एज होस्ट लेयर। ओके। ये हमारे होस्ट लेयर का पार्ट होता है, और फिर अदर हमारा नेटवर्क का पार्ट होता है, राइट। तो दो पार्ट में इसको डिवाइड करके मिलेगा। अभी जो आपने यहाँ पर अपडेट देखा, यहीं पर आपको मिल जाएगा एक और अपडेट, जो कि यहाँ से आप देख सकते हो। तो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन और ट्रांसपोर्ट एक तरीके का हमारा ये 4 होस्ट लेयर में आता है। और मीडिया लेयर में हमारे पास नेटवर्क, डेटा एंड फिजिकल अवेलेबल होता है। ओके। ये चीज़ भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। जस्ट आप देखो, थोड़ा सा हम एक एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे, और आप लोग भी चीज़ें देखेंगे, और कुछ अगर ऐसा थ्योरी और कॉन्सेप्ट ये है, तो उसको आप गूगल वगैरह करके इमेजेस वगैरह से थोड़ा समझने की कोशिश करना, है ना। तो क्योंकि इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास अवेलेबल है और इंटरनेट 24/7 हमारे पास अवेलेबल होता है, तो 100% हमें उसका फुल पोटेंशियल इस्तेमाल करना चाहिए। ओके। तो ये चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं। तो दो पार्ट में इसको हम ये डिफाइन करके समझ सकते हैं। ओके। बट जो फंक्शन हमारा एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन का होता है, वही इन 3 लेयर्स का भी आपको देखने को मिलेगा। सेम फंक्शन एज पर ओएसआई मॉडल। ट्रांसपोर्ट हमारा ट्रांसपोर्ट ही है, नेटवर्क हमारा नेटवर्क है, और ये फिर कॉम्बाइन मॉडल आ जाता है, और कॉम्बो आ जाता है हमारे डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर का। जहाँ 5 मॉडल होते हैं, मतलब 5 लेयर होते हैं टीसीपी आईपी में, ये दोनों अलग अलग होते हैं। ओके। नेटवर्क इनका जस्ट नेम आई थिंक चेंज होता है, बाकी सेम होता है। बट 4 लेयर के अकॉर्डिंग काफ़ी पॉपुलर वो है, तो आप इसको 4 लेयर में भी समझ सकते हो। ओके। तो अब हम अगर ओएसआई मॉडल का जो स्टेप या प्रोसेस है, अगर उस चीज़ को हम यहाँ पर समझें, तो बहुत इजली ये अ, समझ सकते हैं कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है और इसका पर्पस क्या होता है। तो एप्लीकेशन लेयर हमारा क्या होता है, एक तरीके का 7 लेयर होता है। ये हमारा होता है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके। सो टॉप टू बॉटम अगर हम देखें, तो एप्लीकेशन टू फिजिकल होता है, और बॉटम टू टॉप देखें तो फिजिकल टू एप्लीकेशन होता है, राइट। तो एप्लीकेशन लेयर का पर्पस क्या होता है कि लाइक मेंटेन यूजर इंटरेक्शन। ओके। ये क्या करता है, एप्लीकेशन का मेन पर्पस क्या होता है कि मेंटेन यूजर इंटरेक्शन। ओके। यूजर इंटरेक्शन लाइक, सॉरी, लाइक अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं फ्रॉम एनी वेबसाइट, सो इट इज इम्पोर्टेंट टू एक्सेस द वेब डेटा थ्रू एनी एप्लीकेशन। ओके। क्या HTTP और HTTP के बिना कोई वेब डेटा एक्सेस किया जा सकता है? नहीं। तो जो हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है ना एक यूज़र का वेब ब्राउजिंग करते हुए, HTTP, HTTPS प्रोटोकॉल, FTP। ओके। FTP मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, DNS। ओके। ये सभी SMTP, ये सब प्रोटोकॉल्स होते हैं, है ना। चाहे किसी भी ब्राउज़र का आप इस्तेमाल करो, तो इन सब प्रोटोकॉल्स की हेल्प से एक यूज़र इंटरेक्शन होता है, और डेटा हम इसके थ्रू एक्सेस करते हैं, ब्राउज करते हैं। ओके। सो दीज आर दी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS। ओके। ये सारी चीज़ें होती हैं। इनको हम मॉनिटर कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं कि कौन सा लेयर या कौन सा इंफॉर्मेशन किस लेयर पर होता है। एट द एंड ऑफ टॉपिक आज मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको चेकआउट कर सकते हैं, या कैसे इन लेयर बाय लेयर की मॉनिटरिंग कर सकते हैं थ्रू एन एप्लीकेशन। ओके। यू कैन यूज Wireshark application to monitor the traffic and to check the all details, but मैं अभी दिखाता हूँ इसको और डिटेल में। प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली यूज्ड फॉर ट्रांसलेशन
ओके, ट्रांसलेशन और इंक्रिप्शन, ओके, एंड कंप्रेशन, राइट। ट्रांसलेशन के लिए, डेटा इंक्रिप्शन के लिए, कंप्रेशन के लिए, मीन्स व्हाट अबाउट डेटा, ओके, आर द फॉर्मेट ऑफ डेटा। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आ जाएंगे, जैसे एसएसएल हमारा हो गया, ये हमारा 6 नंबर है, ये 7 नंबर है, ओके, यहाँ 7 और यहाँ 6 आप कर लो। तो ये हम बोलेंगे कि हमारा जो इनक्रिप्शन है, डेटा ट्रांसलेशन है, या कंप्रेशन है, ये सब हमारा प्रेजेंटेशन लेयर का पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई डेटा किसी को सेंड करना है ना, तो उसका एक फॉर्मेट होगा ना। मान लिया कि मैं आपको मेल सेंड करना चाहता हूँ, एसएमटीपी के थ्रू सेंड करूंगा, बट मैं मेल के अंदर क्या भेजूंगा? कोई टेक्स्ट फाइल, प्रेजेंटेशन का फॉर्म हुआ ना। For example, I can send the text file, I can send the JPG, MPEG 4, MP4, okay. I can use SSL or TLS label encryptions, okay. तो एक तरीके का मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा को कंप्रेस करके, इनक्रिप्ट करके, वीडियो फॉर्मेट, ऑडियो फॉर्मेट, टेक्स्ट फाइल, पीडीएफ, डॉक फाइल, कुछ भी तो मैं यूज करूंगा प्रेजेंटेशन, ओके, लेयर का। ये हमारा फंक्शन होता है। फिर ये होता है कि ठीक है, ऑन प्रेजेंटेशन लेयर अगर यूजर क्या करता है, डेटा प्रेजेंटेशन पर बात करता है, तो हमारा सेशन लेयर क्या करता है? सो बेसिकली सेशन लेयर मैनेज कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन एंड सर्वर, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है कि 5th नंबर की अगर हम लोग बात करें, तो मैनेज सेशन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में क्या होता है, बेसिकली सेशन को मेंटेन किया जाता है, ओके। अब ये सेशन मेंटेन कैसे होता है? फॉर एग्जांपल अभी हम लोग यहाँ पर जूम के थ्रू कनेक्ट हैं, राइट। जूम सर्वर के थ्रू कनेक्ट है ना, एक दूसरे से सभी लोग सेशन में। हम लोग ये कहते हैं ना, आज सेशन अटेंड करने जा रहे हैं, सेशन अटेंड करना है इतने बज के इतने मिनट पर। तो सेशन लेयर का काम क्या है यहाँ पर? बैकएंड में समझ लो कि कोई एक ऐसा लेयर है जो हमारे सेशंस को मेंटेन कर रहा है हमारे सर्वर एंड से। वो कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें? नेट बायोस आपका आता है, वीओआईपी सेशंस आते हैं, हमारे रिमोट प्रोसीजर्स कॉल्स आते हैं, या जो करंट हमारे सेशंस इस्टेब्लिश होते हैं, इन सबको एक यानी कि सेशन को मैनेज करना, सेशन को टर्मिनेट करना, सेशन इस्टेब्लिश करना, ये सब काम किसका होता है? सेशन लेयर का होता है, ओके। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि स्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग सेशंस इन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो सेशन लेयर का काम ये होता है, ओके। जैसे अभी मैं रिमोट एक्सेस किसी का मशीन करूं, तो वहां पर एक सेशन स्टेब्लिश हो जाएगा, ओके। एंड समटाइम्स वी कैन हैंडल द सेशन लेयर कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ सर्वर। लाइक अगर मैं रिमोट सेशन इस्टेब्लिश करता हूँ किसी मशीन के लिए, और फॉर सर्वर लेवल्स रिमोट सेशन, सो आई कैन सेट अप द idle time for that particular session. I can set up the maximum time hours for the specific session, कि कितने समय तक के लिए वो इस्तेमाल किया जा सकता है, कितने घंटे के लिए, कितने मिनट्स के लिए वो इस्तेमाल किया जा सकता है, कितने आवर्स के लिए, वट एवर जो भी इंफॉर्मेशन है। या किसी वेबसाइट पर आप हो तो कितनी देर वो वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो, कितनी देर तक आपने उस वेबसाइट पर एक्सेस नहीं किया तो आपका करंट सेशन टर्मिनेट हो जाएगा, आपका सेशन ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा, ओके। ये सारी चीज़ें। रिसेंटली मैं आईटीआर अपना सीए से भरवा रहा था, तो सारी चीज़ें, तो उधर उन्होंने, मैं और देख रहा था कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन, कैसे कैसे क्या, वो 2-3 दिन का प्रोसेस रहता है, कैसे क्या किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें। तो जस्ट मैं देख रहा था, ऊपर देखा 20 मिनट का या कुछ देर का सेशन दिखा रहा था, ओके, कि अगर उतने समय तक उस साइट पर या उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर कुछ ना किया जाए, तो क्या होगा कि आपका जो सेशन है, जो करंट लॉगिन सेशन है, वो लॉग आउट हो जाएगा। मीन्स सेशन लेयर इसी तरीके से होता है, टर्मिनेशन, मेंटेनिंग, एस्टेब्लिशिंग, इन सारी चीज़ों को लेकर। फिर हमारे पास आता है एक और लेयर, जो कि हमारा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर? का पर्पस क्या होता है? देर इज टू प्रोटोकॉल, वन इज टीसीपी एंड नेक्स्ट वन इज यूडीपी। मैंने दोनों के बारे में आपको बता रखा है, ओके। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है कि इट इंश्योर द डेटा
ट्रांसफर। ओके, ये क्या करता है, या डेटा ट्रांसफर करने के लिए, डेटा ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये वर्क करता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर यूज टू प्रोटोकॉल, देयर आर अदर मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, but yes, there is TCP and UDP for transportation. So TCP is reliable, secure, provide acknowledgement, and UDP unreliable, insecure or not secure, there is no acknowledgement. Okay, तो ये सारी चीजें इधर वर्क करते हैं, राइट। एंड नेटवर्क लेयर हमारा होता है, जैसे कि अगर हमारा सारा कुछ रेडी है, डेटा ट्रांसपोर्टेशन एंड एवरीथिंग, सो देर इज नेटवर्क लेयर। एंड बेसिकली नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेस्ट बेस्ट राउटिंग, रूट और पाथ। ठीक है, बेस्ट पाथ जो सिलेक्ट होता है वो नेटवर्क लेयर के बिहाफ पर होता है। मींस नेटवर्क लेयर की जो डिवाइसेस होती हैं वो लेयर 3 डिवाइसेस होती हैं, लाइक राउटर और लेयर 3 स्विच और फायरवॉल्स। तो इन सब डिवाइसेस का काम क्या होता है कि हमारे पैकेट्स को, जैसे हम करंटली, मान लिया कि मैं करंटली यहाँ पर, अ, मान लिया मैं नोएडा साइड हूँ, और मुझे यहाँ से पैकेट एक्सेस करना है स्पेसिफिक यूजर को, मान लिया आप में से कोई दुबई से है, ठीक है, ओके, और अनदर किसी लोकेशन से है। तो मुझे यहाँ से सेशन स्टेप मतलब डेटा सेंड करना है यहाँ पर। तो मेरा जो कनेक्शन है वो हमारे किसी ना किसी आईएसपी के थ्रू, जो भी कनेक्शन है उसके थ्रू होगा, आईएसपी से कनेक्शन होगा, राउटर वगैरह यहाँ से मिला होगा। तो मेरा जो सारा ट्रैफिक है वो कौन हैंडल कर रहा है, हमारा राउटर। यानी कि मेरे कंप्यूटर से जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे राउटर तक ट्रांसफर हो रहा है। और हमारे राउटर का पर्पस क्या होता है कि भाई अब तुम्हारा डिसीजन लेने का समय आ गया, और तुम्हारा काम ये है कि तुम अब हमारे यूजर को जो दुबई लोकेशन पर है, मे बी बहुत सारे नेटवर्क्स बीच में होंगे, मुझे क्या पता, है ना, क्योंकि ये पब्लिक इंटरनेट है। और पब्लिक इंटरनेट पर हजारों लाखों करोड़ों मीन्स मिलियंस ऑफ मिलियन हो सकते हो नेटवर्क अवेलेबल हो, है ना, सभी यूजर ऐसे हैं। तो हमारे राउटर से और इस यूजर के जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा पाथ सिलेक्ट होगा जो कि बेस्ट रूट होगा, वो मैनेज करने का काम होता है हमारे नेटवर्क लेयर का। ओके, so there are different different types of activity or protocols which we can use on router to maintain these all things, but हमारा इतना समझना जरूरी है कि नेटवर्क लेयर मेंटेन द बेस्ट रूट बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। एंड द नेक्स्ट वन इज डेटा लिंक लेयर। व्हाट अबाउट डेटा लिंक लेयर? व्हाट अबाउट डेटा लिंक लेयर मीन्स? मैक एड्रेस टू मैक एड्रेस। यस, सो मेंटेनिंग मैक प्लस एलएलसी। ओके, ये क्या करता है डेटा लिंक लेयर, मैक प्लस एलएलसी लॉजिकल लिंक कंट्रोल को मैनेज करने का काम करता है। यानी कि बेसिक अगर बोला जाए तो हमारा जो फ्रेम लेयर का या फ्रेम फॉरवर्डिंग होता है ऑन बिहाफ ऑफ मैक एड्रेस और एलएलसी और ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके होता है। तो यहाँ पर हमारा जो इंफॉर्मेशन होता है, पहले तो ईथरनेट फ्रेम में होता है, फ्रेम फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन होती है, राइट। एक चीज और मैं बता दूं कि जो हमारा नेटवर्क लेयर होता है ये पैकेट फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा सेगमेंट फॉर्मेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। और ये हमारा होता है फ्रेम फॉर्मेट होता है इंफॉर्मेशन। और यहाँ पर हमारा क्या होता है, बिट्स होता है, राइट। ये भी इंटरव्यू का पार्ट है, याद रखेंगे। सो इथरनेट फ्रेम होता है। और मैक एड्रेस कैसे फंक्शन करता है, वेल नोन प्रोसेस हमारा नेटवर्किंग में सीखने को मिलता है। ओके, कि हमारा एक इंफॉर्मेशन जब हमारे राउटर से हमारे स्विच को डिलीवर होता है, स्विच से में भी 500 कंप्यूटर कनेक्टेड हो सकते हैं, बट उनमें से किसी एक कंप्यूटर को वो डेटा डिलीवर करना है। तो उसका जो मैक एड्रेस इंफॉर्मेशन होता है वो हमारे स्विच पर स्टोर होता है। और वो स्टोर जो होता है उसको कैम टेबल के अंदर स्टोर किया जाता है। ये तो थ्योरी आप जानते हैं। देखो, थ्योरी जितना बेटर होगा, प्रैक्टिकल उतना बेटर होगा। लोग ये कहते हैं कि मैं प्रैक्टिकल ज़्यादा करूँगा तो मुझे नॉलेज ज़्यादा होगी, और ये सारी चीज़ें वो एक तरीके का एक स्टेप की नॉलेज हो सकती है, बट अगर उसमें या बिना उस चीज़ को समझे अगर आप उसको, मान लिया कि स्टेप आपको याद है या प्रैक्टिस कर भी लिए, तो थोड़ी सी भी एक्टिविटी अगर उसके अंदर इधर उधर होती है तो फिर आप उसको समझ नहीं पाओगे।
ओके। तो सबसे पहला पार्ट होता है किसी भी फंक्शन को समझना, जैसे कोई भी एक, जैसे हम लोग एक मेंटल या मेंटेलिटी बना लेते हैं, बहुत सारा मैंने देखा है। जैसे मेरे पास जब इंक्वायरी आती है तो सर प्रैक्टिकल होगा, तो मैं यही बोलता हूँ हाँ, 100% प्रैक्टिकल होगा बट थ्योरी भी होगा। तो मुझे प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग करनी है, ऐसा भी यूज़र पूछता है। तो मुझे तो पता रहता है कि भाई ठीक है, अगर मुझे प्रैक्टिकल बेस बस कराना है तो मैं आज सर्वर स्टार्ट करूंगा, एडी का सेटअप करवाऊंगा, डीएनएस सेटअप करवाऊंगा, अगले 15 दिनों में हमारा पूरा सेशन फिनिश हो जाएगा। राइट। सारे सेशंस का स्टेप भी मैं सेंड कर दूंगा। बट जैसे ही मान लिया एडी में कोई पूछता है कि यार ओडीसी बना क्यों रहे हो, एडीसी बना क्यों रहे हो, है क्या ये चीज़, किस लिए बना रहे हैं, नहीं पता। तो वही मेरे समझाने का मतलब होता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द थ्योरेटिकल पार्ट फर्स्ट, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डेप्थ पार्ट ऑफ एनी लैब। ओके। वो चीज़ आपको समझ में आएगा, ट्रबल शूटिंग समझ में आएगा, एरर कहाँ पर हुई वो समझ में आएगा, उसको सॉल्व करने का तरीका इजली आपके दिमाग में हिट करेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वही मैंने यहाँ पर बताया कि आपने स्विच के बारे में पढ़ा होगा, लेयर 2 डिवाइस है। कैम टेबल के अंदर हमारा मैक एड्रेस का इंफॉर्मेशन होता है, पोर्ट एड्रेस की पोर्ट की इंफॉर्मेशन होती है। पोर्ट सॉरी मैक एड्रेस स्टोर कैसे हुआ, डायनेमिक वे से हुआ क्या है, वो सारी चीज़ों का स्टोर हुआ। वीलैंस की इंफॉर्मेशन होती है, ये सब आइडिया नहीं होता है हमें। हालांकि नेटवर्किंग पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको ये चीज़ का आइडिया होगा। तो बेसिकली हमारा क्या होता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, एंड ऑन बिहाफ ऑफ कैम टेबल आर स्विच ट्रांसफर द डेटा ऑन बिहाफ ऑफ मैक एड्रेस। ओके। because CAM table store the MAC address information included port number as well as VLAN information. So if there is possibility to transfer the data in between two different VLAN, it is possible through MAC address और थ्रू स्विच। ओके। इट डिपेंड्स कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन किस लेवल का है, वो सारी चीज़ें मैटर होती हैं। तो यस, यहाँ पर फ्रेम हमारा वर्क करता है, बट ये भी श्योर करना होता है कि हमारा फिजिकल लेयर जो होना चाहिए ये प्रॉपर एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव मतलब अगर हमारा पीसी हमारे लैन केबल के साथ प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है तो क्या डेटा ट्रांसफर होगा, सारा कहानी वहां पर आकर फेल हो जाएगा, है ना। तो फिजिकल कनेक्शन लाइक केबल मीडिया, ओके, वाईफाई कनेक्शन, या फिर हब है तो उसका कनेक्शन, है ना, ये सब हमारा क्या होना चाहिए, ब्रिज वगैरह है, नहीं नहीं ब्रिज नहीं। एक और डिवाइस होता है एज अ रिपीटर। राइट। तो ये सब हमारा जो डिवाइस अगर है या लेयर 1 की डिवाइस है या लेयर 1 का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मीन्स पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर, हमारा डिवाइस प्रॉपर इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, केबल प्रॉपर होना चाहिए, स्विच पर प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए, राउटर प्रॉपर काम करना चाहिए, आगे का फिर नेटवर्क हमारा प्रॉपर काम करेगा, ये सारी चीज़ें। तो हमारा जो सिंपल इंफॉर्मेशन अगर है ओएसआई मॉडल, अगर कोई पूछता है कि व्हाट अबाउट ओएसआई मॉडल, तो डीप एक्सप्लेनेशन आप इस पॉइंट के भी यहाँ पर करेंगे। एंड अगर आपको इन सिंपल डिफाइन करना और ब्रीफ करना हो तो एप्लीकेशन फॉर यूजर इंटरेक्शन, प्रेजेंटेशन फॉर डेटा प्रेजेंटेशन लाइक फॉर्मेट ऑफ डेटा, सेशन, मेंटेनिंग सेशन, टर्मिनेटिंग सेशन, एस्टेब्लिशिंग सेशन, transport layer to transport the data with the help of DCP and UDP, and network layer like we can understand the best routing path to transfer the data for exact location. Okay. And data link layer for frame forwarding, and physical link or physical layer means physical और टोपोलॉजी और दी लैन केबल मीडिया एटसेट्रा। ओके, ये सारी चीज़ें इधर होती हैं। तो ये हमारा क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन होता है, और इन्हीं से जुल मिलता जुलता ये एप्लीकेशन लेयर है। तो एप्लीकेशन में अगर ये तीन कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, कंबाइन है, तो एज पर टीसीपी यू कैन डिफाइन दीज 3 layers एक्टिविटी इन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन लेयर। सो अकॉर्डिंग टू टीसीपी आईपी मॉडल भी आपको ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर एचआर आपसे ऐसे ही बिना वो ऐसा, ज़्यादा फोकस सबका क्या होता है ओएसआई मॉडल को होता है, बट समटाइम्स अगर एचआर या कोई भी पर्टिकुलर टेक्निकल पर्सन आपसे क्वेरी कर लेता है कि फॉर एग्जाम्पल इन एप्लीकेशन लेयर आई एम लाइक डिफाइनिंग प्रेजेंटेशन, सॉरी इन एप्लीकेशन लेयर आई एम डिफाइनिंग अ डेटा फॉर्मेट, लाइक डेटा हमारा एक ASCII फॉर्मेट में है और मुझे उसको ट्रांसफ़र करना है। तो यूज़र कहता है नहीं सर, प्रेजेंटेशन लेयर पर वो होता है ना कि हमारे एप्लीकेशन लेयर पर होता है।
तो पहले हमें ये भी श्योर करना होता है कि हो सकता हो वो अकॉर्डिंग टू टीसीपी आईपी पूछ रहा हो, है ना, और कंबाइन मॉडल पूछ रहा हो। तो ये भी है, इंटरव्यू में ऑब्जेक्टिव में बैठे हैं तो आप देख लें वो एसआई पूछ रहा है या टीसीपी आईपी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। नहीं तो फिर हम ये मिस्टेक कर सकते हैं जानकारी के बावजूद भी। और इतना इजी क्वेश्चंस इनके होते हैं और होते ही होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेरीज या इनसे रिलेटेड अपडेट और ये सारी चीज़ें। राइट। समझ में आया सबको? यस। ओके। मैं एक छोटा सा यहाँ पर एक एक्टिविटी दिखाता हूँ। मेरे पास अगर कोई सिस्को की लैब बनी है तो ज़रूर मैं अभी आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग लैब दिखाऊंगा। एडिशनल इसको समझो, जिसके थ्रू आप, हाँ जी, ये एक है। एंड फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सर्वर है और सर्वर की आईपी है 192.168.0.50। ओके। अब मान लिया कि मैंने अपने इस यूज़र से कहा कि तुम एक काम करो, एक सर्वर है उसको एक्सेस करो। अब ये एक्सेस करेगा, देखना ध्यान से, मैं पूरी मॉनिटरिंग दिखा देता हूँ। इसने एक्सेस किया www.सीखोलाइव.com। डोमेन किस नाम से है? सीखोलाइव.com से है, तो सीखो ऐसे आप सर्च करते हो, पैकेट जनरेट हुआ। आप यहाँ पर देखो पैकेट जनरेट हुआ। तो जो पैकेट्स या इंफॉर्मेशन जनरेट होता है उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। ईथरनेट हेडर फ्रेम, बहुत सारे ऐसे अलग अलग उससे बोला जाता है। तो आप जब इस पर सेलेक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक तरीके का इंफॉर्मेशन मिलेगा, पीडीयू, प्रोटोकॉल डेटाग्राम यूनिट। इंफॉर्मेशन डिवाइस के लिए है और वो डिवाइस है PC0। यानी PC0 ने कोई पीडीयू भेजा, प्रोटोकॉल डेटाग्राम यूनिट, यानी कि कुछ डेटा सेट और इंफॉर्मेशन सेंड किया। किसको सेंड कर रहा है? अब यहाँ पर दो इंफॉर्मेशन, एक तो एक ये है जिसको हम ये समझेंगे कि इट इज ARP। अब नेटवर्क में ARP क्यों होता है? जब हम प्रैक्टिकल मॉडल में आते हैं तो थ्योरी बहुत काम आता है। अब ARP, मैंने बोला कि ARP क्यों होता है, तो ARP का मतलब होता है कि एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल, या एड्रेस रिसॉल्व करने के लिए जो प्रोटोकॉल है वो है। जैसे फॉर एग्जांपल IP टू मैक और मैक टू आईपी। ARP क्या करता है? IP टू मैक और मैक टू आईपी मेंटेन करने का काम करता है। तो हमारा जो स्विच के साथ अगर कोई डिवाइस है तो स्विच का काम क्या होता है? मैक एड्रेस का इस्तेमाल करके डेटा को सेंड करना। बट स्विच के पास अगर हमसे जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं स्विच के साथ, इनका मैक एड्रेस अपडेट नहीं होगा तो स्विच हमेशा जनरेट करेगा एक ब्रॉडकास्ट मैसेज लाइक ARP। ARP का काम क्या होगा कि ये जाएगा स्विच को डिलीवर होगा, और स्विच ये पैकेट इसको 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 तीनों को भेजेगा। हम सबको पता है स्विच ब्रॉडकास्ट एक बार करता है जब तक कि उसको मैक एड्रेस अपडेट ना मिल जाए। ओके। अब इसके अंदर देखो क्या इंफॉर्मेशन है? लेयर 2 की इंफॉर्मेशन है। क्लियर हुआ सबको? ओके। अगर मैं बैक करके यही दिखाऊं तो यहां पर क्या था? ARP के अंदर ARP प्रोसेस कंस्ट्रक्ट्स रिक्वेस्ट फॉर द टारगेट आईपी एड्रेस। मीन्स इसने डेटा पैकेट सेंड किया कोई सीकोलाइव.com किसी टारगेट आईपी को, बट स्विच को क्या पता कि टारगेट कौन है और कहाँ भेजना है, किसको भेजना है। तो ये क्या करेगा? एक तरीके का ईथरनेट फ्रेम के अंदर हेडर के, सॉरी, ईथरनेट हेडर के अंदर इसने मेंटेन किया सोर्स मैक एड्रेस, बस डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस इसको नहीं पता। और स्विच को अगर मैक के बारे में नहीं पता तो क्या स्विच किसी को डेटा देगा? अगर पोस्टमैन को कोई लेटर दे दे और उसके अंदर डिलीवरी किसको करनी है उसका एड्रेस ना डाले तो पोस्टमैन डेटा दे पाएगा किसको देना है? हाँ, नहीं ना। तो स्विच हमारा जब तक डेस्टिनेशन का एड्रेस क्लियर नहीं करेगा तब तक वो डेटा को, पैकेट को ट्रांसफर नहीं करेगा, क्योंकि आईपी तो है, सेंड करने वाला 0.2 है और रिसीव करने वाला डेस्टिनेशन 50 है, बट स्विच आईपी से बात ही नहीं करता। अगर राउटर होता तो ठीक है, बट स्विच आईपी से बात नहीं करता। आईपी का
एड्रेस इस्तेमाल नहीं करता, आईपी रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये 50 का जब तक मैक एड्रेस जो एफ एफ करके फुल है ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये मेंटेन नहीं करेगा। ये लेयर 2 पर बातें हो रही हैं। समझ में आया सबको? ये जैसे ही स्विच के पास जाएगा, स्विच यहाँ पर पैकेट को ब्रॉडकास्ट करेगा, आउट करेगा तो भी वही ब्रॉडकास्ट करेगा। आप पूरा पैकेट के बारे में पढ़ो, यहाँ पर पूरी डिटेल्स है। जैसे ये देखो क्या क्या हो रहा है, सब लिखा हुआ है। इसने सेंड किया सभी को, जितने कनेक्टेड पोर्ट थे। तो पता चला कि इसने रिजेक्ट किया, इसने रिजेक्ट किया, इसने इसको एक एक्नॉलेजमेंट भेजा कि यस मेरा आईपी एड्रेस 50 है, और मेरा 50 का मैक एड्रेस जो है वो है क्या, यहां पर देखो 50 का मैक एड्रेस क्या है, शायद ये है। एक तो ये है मैक एड्रेस, और इसको जा रहा है, यानी कि सोर्स है 50, यानी कि ये मैक एड्रेस C019, ये मैक एड्रेस हमारा इसका है, राइट। तो अब इसने पैकेट का जो मैक एड्रेस है दिया थ्रू ए आर पी यहाँ पर काम करता है। अब इसको इसने एक्नॉलेज कर दिया कि भाई लो कंफर्म हो गया कि तुम्हारा मैक एड्रेस ये इंक्लूड करना है। तो इसने मैक एड्रेस अगले पैकेट के अंदर इंक्लूड कर दिया। ये देखो अगला जो भी पैकेट ट्रांसफर होगा ये होगा, और इसके अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों मैक एड्रेस होंगे, आईपी का इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। तो फर्स्ट टाइम ये अपडेट होता है और इसने इसको पैकेट दे दिया। मतलब यहाँ से ऐसे जाकर इंफॉर्मेशन ये ले लेगा, फाइनल हमारा डेटा पैकेट या इंफॉर्मेशन इधर जाके क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। इंफॉर्मेशन देखो यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो हम आईपी से एक्सेस कर लेंगे, हो सकता है कि उसका डीएनएस रीच नहीं कर रहा है सीखो लाइव.com। ठीक है। तो अब सॉरी एक्सेस हो गया, बट मुझे एक चीज़ दिखाना था यहाँ पर, मैं फिर से मॉनिटरिंग करता हूँ। इसको हटा दिया यहाँ पर 192.168.0.150, एंड देखो हर लेयर की इंफॉर्मेशन अपडेट है। यहाँ पर टीसीपी यूडीपी काम कर रहा है पोर्ट नंबर के साथ, सोर्स डेस्टिनेशन भी काम कर रहा है। इंफॉर्मेशन आया, अभी देखना टीसीपी लेवल की इंफॉर्मेशन होगी और एचटीटीपी प्रोटोकॉल होगा, यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं हम लोग। ये देखो मुझे किसी गूगल सॉरी सीखो लाइव.com को सर्च कर लेना है, या फिर पीसी 0 के पैकेट्स को, एक बार इसको हटाते हैं यार सभी को, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, देखो बहुत सारा अपडेट यहाँ पर आ रहा है। एक एक पैकेट को अगर आप चेक करोगे तो आपको सारे लेयर की इन्फॉर्मेशन मिलेगा, टीसीपी और एचटीटीपी की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगा, पोर्ट 0 की इंफॉर्मेशन, एंड देखो एचटीटीपी 7 लेयर पर आया। ठीक है। तो किस लेयर पर क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, आपको जैसा थ्योरेटिकल मॉडल बताया गया वैसे ही बैकएंड में काम होता है। हमें इनको सेट नहीं करना होता है कि इस तरीके से ये काम करेगा, इस तरीके से ये काम करेगा। क्लियर है सभी को? ओके।